हेलो दोस्तों, तो हमने कल एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 1 किया था। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें सभी की ज़रूरत है। हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना है, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, पॉवर्टी को भी डिक्रीज़ करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, prevention and control of pollution, decreasing poverty, all are important for sustainable development. It is imperative for achieving the goal of sustainable development to make policies on information about our environment and ecology. Presently, sustainable development has become an alternative approach to the theories of development. Certain information are required for policy formulation on sustainable development. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर accessing the carbon footprint of building operations around the world, enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading, enabling government to access the overall carbon footprint caused by their countries, assessing the overall carbon footprint caused by use of fossil fuels by the world in a unit time. तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द कॉमन कार्बन मैट्रिक जो सपोर्ट करता है UNEP को, सर वो डेवलप किया गया है एसेस करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट को, जो कि बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। Common carbon metric for measuring energy use and reporting greenhouse gas emission from building operations. Leading experts from around the world have, through extensive international cooperation, developed a universal method of measuring building carbon footprint. The common carbon metric is the calculation used to define measurement, reporting and verification of greenhouse gases emissions associated with the operation of building type of particular climate regions. While it is not building rating tool, it is consistent with method of assessing the environmental performance of building used globally, such as World Business Council for Sustainable Development, World Resource Institute, Greenhouse Gases Protocol, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं है। तो गुड गवर्नेंस, क्लीन एंड ग्रीन सिटी और स्मार्ट मोबिलिटी, ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं हमारे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के। बट स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्मार्ट सिटी के और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे। Smart City is an innovative and new initiative by Government of India to derive economic growth and improve the quality of life of people by enabling local development, harnessing technology as a means to create smart outcome for citizens. The core infrastructure element of the mission are adequate water supply, assured electricity supply, sanitation including solid waste management, efficient urban mobility and public transport, affordable housing especially for poor, robust IT connectivity and digitalization, good governance especially e-governance and people's participation, sustainable development, safety and security of citizens particularly women, children and elderly, health and education. नेक्स्ट है हमारा कि अर्थ समिट जो है वो कहाँ हुआ था। तो अर्थ समिट हमारा रियो डी जेनेरो में हुआ था। जो फर्स्ट अर्थ समिट था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हेल्ड हुआ था रियो डी जेनेरो 1992 में। इन 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने हेल्ड किया था रियो, एंड इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड Rio+20, रियो अर्थ समिट, जो कि 2012 में हुआ था। व्हाट इज द टाइटल ऑफ Rio 20 डिक्लेरेशन। Rio 20 डिक्लेरेशन का टाइटल क्या था? इसका टाइटल था द फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर जो हम चाहते हैं। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज Rio 2012, Rio+20 और अर्थ समिट 2012 फॉर द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हॉस्टेड बाय ब्राजील, रियो डी जेनेरो। प्राइमरी रिजल्ट जो था कॉन्फ्रेंस का वो था नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट द फ्यूचर वी वांट, अ 49 पेज एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, जो फर्स्ट अर्थ समिट था वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो। अभी मैं ऊपर पढ़ भी चुके हैं इसको। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरो वॉज, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ कॉल्ड। जो अर्थ के चारों तरफ एक थिन लेयर ऑफ गैसेस बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो थिन लेयर ऑफ गैसेस होती है सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन along with the smaller amount of oxygen and carbon dioxide.
एयर क्या है, एक मिक्सचर है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जहाँ पर 78% हमारी नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। देन बाकी बची गैसेस जो हमारी वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द वेरी स्मॉल क्वान्टिटी। अब क्वेश्चन से पूछता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है ड्राई एयर में, तभी हम पढ़ चुके हैं 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पर दिया हुआ है हमें नाइट्रोजन 78 होती है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन 20.95 अप्रॉक्स 21%, देन ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियॉन 0.002%, हीलियम, क्रिप्टन, जीनन और हाइड्रोजन के हमें परसेंटेज दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? तो इसका आंसर होगा बी, 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? हीलियम, ऑर्गन, रेडन, नियॉन। तो रेडन नहीं होगा इसमें प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एटमॉस्फेयर द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हमने अभी पढ़ा 78% हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन। द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन द एयर वो क्या होगी, नाइट्रोजन। इफ ऑल प्लांट एंड ट्रीज वेनिश फ्रॉम द अर्थ द गैस विच विल डिक्रीज इज, सभी प्लांट और ट्रीज जो है वेनिश हो जाए, अर्थ से जो गैस डिक्रीज होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन, क्योंकि वही हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड वी डिपेंड ऑन ट्रीज टू प्रोवाइड दिस ऑक्सीजन टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ। ट्रीज गो थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस where they take in carbon dioxide from the air, release oxygen back into the atmosphere. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं कि which of the following is not a function of the tree? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉइस वो भी करता है, एयर पॉल्यूशन नहीं, ट्री से तो एयर पॉल्यूशन बल्कि रिड्यूस होता है, रिलीजिंग ऑक्सीजन यस करता है। तो इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा सी। ट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट टू एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, क्लाइमेट एमोलिएशन, कंजर्विंग वाटर, प्रिजर्विंग सॉइल एंड सपोर्टिंग वाइल्ड लाइफ, हैंस दे क्लीन द एनवायरमेंट एंड आर नॉट द रीजन बिहाइंड एयर पॉल्यूशन। In addition to this, trees on both sides of road reduce the sound pollution by reducing the intensity of sound by 10 to 15 decibel. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और वॉल्केनिक एक्शन। विच ऑफ द अबव कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ? इसमें से कौन सा जो है वो ऐड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन साइकिल में? फोटोसिंथेसिस नहीं करता कार्बन ऐड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को इवन एब्जॉर्ब करता है, बट रेस्पिरेशन से ऐड होती है, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से ऐड होती है, वॉल्केनिक एक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस में जो हमारे क्या बोलते हैं ट्रीज होते हैं या जो भी सब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं हम। द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वॉल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा contribute carbon dioxide to the carbon cycle, where plant use carbon dioxide in the process of photosynthesis. Thus, plant do not add carbon dioxide to the carbon cycle, rather they release oxygen and consume carbon dioxide. Three natural allotrope of element carbon are fluorine, graphite and diamond. Beside a compound found a carbon dioxide, carbonate and hydrogen carbonate. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लेनेट अर्थ? वही सेम चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदरिंग रिलेट्स टू डिपोजिशन ऑफ डिकम्पोज मटेरियल, चेंजिंग इन वेदर कंडीशन डे बाई डे, नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा नेचुरल प्रोसेस लीडिंग डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। वेदरिंग क्या होता है, जिसमें हमारे क्या बोलते हैं रॉक्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं और देन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं आफ्टर वेदरिंग। तो यहाँ पर भी दिया कि वेदरिंग डिफाइन अ mechanical disintegration and chemical decomposition of rock through the action of various elements of weather and climate. Weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। WMO जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्रेमवर्क इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑरिजिनेट करता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंड इन 1873 टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ weather information across national border. WMO became a specialized agency of United Nations on 17 March 1951.
Notably, World Meteorological Convention was implemented 23 March 1950. Its headquarters in Geneva, Switzerland. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज़ लोकेटेड एट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या. UNEP जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में. इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या. इंगर एंडरसन ऑफ डेनमार्क इज करेंटली द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. सेम क्वेश्चन था, नैरोबी, केन्या में. नेक्स्ट है कि वेयर वॉज 4th सेशन ऑफ यूएन एनवायरनमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली. तो ये भी कहाँ पे हुआ था, नैरोबी, केन्या में हुआ था. 2019 के पेपर में आया था ये. 4th session of United Nations Environment Assembly took place 11 to 15 March 2019, Nairobi, Kenya. The theme of UNEA for innovative solution of environmental challenges, sustainable consumption and production. It is noteworthy that 5th session of UNEA took place virtually in Nairobi in February 2021 under the theme Strengthening Action for Nature to Achieve and Sustainable Development Goal. A resumed in-person session UNEA 5 is scheduled to take place 28 February to 2 March 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर. EPA क्या है. एनवायरमेंट पॉल्यूशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर होगा हमारा सी. EPA जो है उसे बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी. ये वो एजेंसी होती है फेडरल गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट की विच वॉज क्रिएटेड पर्पस प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ द एनवायरमेंट बाय राइटिंग एनफोर्सिंग रेगुलेशन बेस्ड ऑन लॉज पास बाय द कांग्रेस. इट वॉज established on 2 December 1970. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन एनविस एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट इज लोकेटेड. इसका आंसर होगा IIPS मुंबई. एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंटर ऑन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट इज लोकेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस मुंबई. तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.